Exercise 5.5, question number 12. X raised to y plus y raised to x equal to 1. We have to find out dy by dx. Put x raised to y equal to u and y raised to x equal to v. Then u plus v equal to 1. Now differentiating with respect to x, du by dx plus dv by dx equal to d by dx of 1. So du by dx plus dv by dx equal to 1 का derivative 0. Equation number 1. Now we have to find out du by dx and dv by dx. U equal to x raised to y, taking log on both sides. Log u equal to log x raised to y. So log u equal to y into log x. Now differentiating with respect to x, derivative with respect to x log u. And here multiplication rule between y and log x. Y as it is derivative log x plus log x as it is derivative y. And derivative log u is 1 upon u and u no derivative du by dx. So du by dx equal to u सामने जाएगा y log x का डेरिवेटिव 1 upon x plus log x as it is y का डेरिवेटिव dy by dx. Now put the value of u. U is x raised to y and this is the y by x plus log x dy by dx. This is the result number 1. This is only du by dx. Now v equal to y raised to x. Again for finding dv by dx, taking log on both the side, log v equal to log y raised to x. So log v equal to x log y. Now differentiating with respect to x, derivative with respect to x log v equal to x into log y का derivative. Derivative log v is 1 upon v dv by dx. Now here multiplication rule, x as it is derivative log y plus log y as it is derivative x. So dv by dx equal to ये v सामने गया, x as it is log y का डेरिवेटिव 1 upon y, y का डेरिवेटिव dy by dx plus log y as it is derivative x is 1. So dv by dx equal to, now put the value of v, y raised to x, and this is the x by y dy by dx plus log y. Now equation 1, 2 and 3. Put the value of 2 and 3 in the equation number 1. du by dx plus dv by dx equal to 0. Put the value of du by dx and then dv by dx and equal to 0. Now open the bracket, x raised to y into y by x plus x raised to y log x dy by dx plus y raised to x by y dy by dx plus y raised to x log y equal to 0. अब इनमें से dy by dx वाले टर्म इकट्ठे करेंगे और dy by dx वाले टर्म सब सामने भेजेंगे. ये अपना dy by dx वाला टर्म है और एक दूसरा ये वाला dy by dx वाला टर्म है. दोनों को सामने भेज दिया, दोनों प्लस थे वो माइनस हो गए और बाकी ये दोनों टर्म बचे. इसमें बेस इक्वल है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन है इसलिए. और एक ये टर्म बचा y रेस्ट टू x log y. दोनों को क्लब कर दिया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया. यहाँ पर भी हमने बेस इक्वल है तो पावर का सब्ट्रैक्शन कर लिया, माइनस कॉमन एंड dy by dx ऑल्सो कॉमन. उनमें से dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये माइनस को सामने भेज दो और इसको डिनोमिनेटर में भेज दो तो dy by dx मिल गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, y रेस्ट टू x इक्वल टू x रेस्ट टू y. इसमें u एंड v सपोज करने की ज़रूरत नहीं है. u v सपोज करने की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म होता है. ये इक्वालिटी फॉर्म है या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है या डिवीजन फॉर्म है तो डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं. इक्वालिटी फॉर्म है, डायरेक्ट लॉग लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y रेस्ट टू x इक्वल लॉग x रेस्ट टू y. ये x ऊपर से नीचे आएगा, x log y इक्वल टू y log x. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x log y dy by dx of and dy by dx of y log x. इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, x as it is डेरिवेटिव log y प्लस log y as it is डेरिवेटिव x. यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा, y as it is डेरिवेटिव log x प्लस log x as it is डेरिवेटिव y. x as it is log y का डेरिवेटिव 1 upon y, y का dy by dx, log y as it is और x का डेरिवेटिव 1. यहाँ पर y as it is log x का डेरिवेटिव 1 upon x प्लस log x as it is y का डेरिवेटिव dy by dx. अब हम क्या करेंगे, dy by dx वाले टर्म इकट्ठे करेंगे. एक dy by dx वाला टर्म ये है और दूसरा dy by dx वाला टर्म ये वाला. ये दोनों इकट्ठे कर लेंगे, यहाँ पे एक साइड पे इकट्ठे कर लिए और विदाउट dy by dx वाले टर्म
एक ये और एक ये दोनों इकट्ठे कर लिए, यहाँ से सामने जाएगा वो माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये सामने जाएगा वो माइनस हो जाएगा। डिवाई बाई डी एक्स वाले टर्म में से डिवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया और अंदर बचा एक्स बाय वाई माइनस लॉग एक्स, सामने वाले में y by x minus log y. Taking LCM, so this is the x minus y log x divided by y and divided by dx. यहाँ पर भी LCM ले लेते हैं, y minus x log y upon x. So divided by dx equal to, ये सामने जाएगा, ये तो नीचे है ही, y by x, ये नीचे जाएगा, y minus x log y upon x minus y log x. This is your simple divided by dx. Now question number 14. Cos x equal to y, cos x रेस टू वाई इक्वल टू cos y रेस टू x. यहाँ पर भी u भी सपोज करने की जरूरत नहीं है. टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log cos x रेस टू y इक्वल टू log cos y रेस टू x. ऊपर से y आगे आ जाएगा, y log cos x इक्वल टू x log cos y. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y log cos x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ x log cos y. यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा. y एज इट इज डेरिवेटिव log cos x प्लस log cos x एज इट इज डेरिवेटिव y. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा तो x एज इट इज डेरिवेटिव log cos y प्लस log cos y एज इट इज डेरिवेटिव x. y एज इट इज log cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x, फिर cos x का बाकी बचा. log cos x एज इट इज y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स. यहाँ पर x एज इट इज log cos y का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos y और cos y का बाकी बचा प्लस log cos y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1. यहाँ पर y अपॉन cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, log cos x एज इट इज डेरिवेटिव y डिवाइड बाई डी एक्स. x बाय cos y, द डेरिवेटिव cos y द माइनस साइन y और y का डिवाइड बाई डी एक्स एंड log cos y. अब इसका मतलब माइनस 10x हो जाएगा साइन बाय कॉस. यहाँ पर भी साइन बाय कॉस है तो माइनस 10y हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म इकट्ठे करेंगे. ये डिवाइड बाई डी एक्स वाला टर्म है, यहाँ से एक डिवाइड बाई डी एक्स वाला टर्म सामने जाएगा. ये एक्चुअली माइनस एक्स 10y है तो सामने जाएगा तो प्लस एक्स 10y डिवाइड बाई डी एक्स. लॉग कॉस वाई इधर है, ये टर्म सामने जाएगा. ये टर्म एक्चुअली माइनस वाई 10x है, वो सामने जाएगा तो प्लस वाई 10x. इनमें से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाला टर्म नीचे जाएगा तो अपने आप डिवाइड बाई डी एक्स मिल जाएगा. 15 नंबर के क्वेश्चन, उसमें लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्टली, एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वाई. एक्स इंटू वाई में मल्टीप्लिकेशन रूल, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव वाई प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव एक्स. ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू और एक्स माइनस वाई का बाकी बचा. एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस 1. इसमें एक्स का डेरिवेटिव एंड देन वाई का डेरिवेटिव. एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई. एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स. एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई, ये ई रेस टू एक्स माइनस वाई जो है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में से लिखेंगे. क्वेश्चन में से ई रेस टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वाई. तो क्वेश्चन में से वैल्यू डाल दी एक्स इंटू वाई फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पज, नथिंग मोर. अभी x इंटू वाई पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन x इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा. सो x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स, ये वाला टर्म सामने गया और विदाउट डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड पे इकट्ठे कर लिए. x इंटू वाई माइनस वाई, डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म में से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाला और बाकी सामने. सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको नीचे डाल दिया, एक्स वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस एक्स. आपको ऐसा लगता होगा कि ये x प्लस एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लस एक्स कैसे लिख दिया. तो एडिशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो ऑर्डर चेंज कर लिया. ऊपर से y कॉमन, नीचे से x कॉमन एंड गॉट द डिवाइड बाई डी एक्स. क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन given by fx equal to 1 plus x, another bracket 1 plus x square, 1 plus x raised to 4 and 1 plus x raised to 8, and hence find f dash 1. fx equal to 1 plus x is already given. Now taking log on both sides, so log fx equal to log 1 plus x square, 1 plus x raised to 4, 1 plus x raised to 8. log में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करते हैं. so log fx equal to log 1 plus x plus log 1 plus x square plus log 1 plus x raised to 4 plus log 1 plus x raised to 8. Now differentiating with respect to x, so log fx का डेरिवेटिव
equal to d by dx of log 1 plus x plus d by dx of log 1 plus x square plus d by dx of log 1 plus x raised to 4 plus d by dx of log 1 plus x raised to 8. log fx का डेरिवेटिव तो पहले log का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन fx एंड देन fx का डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा, नॉट ओनली एक्स का, यहाँ पे डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का होगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव. ओके, फिर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर में पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बाकी बचा. log 1 प्लस एक्स रेस टू 4 में पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 4, फिर बाकी बचा 1 प्लस एक्स रेस टू 4 का. log 1 प्लस एक्स रेस टू 8 में पहले log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 8, फिर बाकी बचा 1 प्लस एक्स रेस टू 8 का डेरिवेटिव. यहाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एच डी 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1. ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एच डी, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का 2x. ये एच डी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 4, 1 प्लस एक्स रेस टू 4 में 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब. And again 1 upon 1 plus x raised to 8 as it is, derivative 1 is 0 and derivative x raised to 8 is 8x raised to 7. ये fx पूरा सामने जाएगा, so f dash x equal to fx into bracket 1 upon 1 plus x 2x by 1 plus x square plus 4x cube by 1 plus x raised to 4 plus 8x raised to 7 by 1 plus x raised to 8. Now put the value of fx from question में से fx की वैल्यू डाल दी. ये अपना f dash x पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा था, फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया. अभी हमको और भी क्वेश्चन पूछा है, पुट एफ डैश 1 फाइंड करने के लिए, सो पुट एक्स बाय 1, एक्स रिप्लेस बाय 1, एक्स को एक्स की जगह पे 1 डाल देते हैं. सो एफ डैश 1 इक्वल टू, यहाँ जहाँ एक्स दिखता है वहाँ पे 1 डाल दिया, पूरे में एक्स की जगह पे 1 डाल दिया. 1 प्लस 1 2, 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, 1 is to 4 is also 1, 1 is to 8 is 1. So this 2 2 2 2, how many times? 4 times. 2 into 2 into 2 into 2, it is 16. This is the 1 by 2 plus 2 by 2, 4 by 2 and 8 by 2. 2 by 2 is 1. 2 1 are 2. 4 by 2 is 2 and 8 by 2 is 4. यहाँ पे लिख दिया 1 by 2 plus 4 plus 2 plus 1 is 7. 16 plus 1 by 2 plus 7. This is the 7 to the 14 plus 1, that is 15 by 2. 16 into 15 by 2, 2 8 is 15 and 2 8 is 16 and 15 8 is 120. So f plus 1 is 120.